Hello bachcho, welcome once again to my channel Smita Classes. Yesterday I was dealing with the civics chapter of standard 6 SST book. The name of the book is Social Science Success, and I was doing the civics chapter number 2. The name of the chapter was Diversity and Discrimination. I had completed part 1 of that chapter, and today I will be doing the part 2 of that chapter of Diversity and Discrimination. We will start reading. Inequality and discrimination. When people act on their prejudices or stereotypes, it gives birth to discrimination, and discrimination breeds inequality. Let us see an example. During the apartheid era in South Africa, blacks and Indians were discriminated against. They were not allowed access to clubs, parks, hotels, first-class railway compartments, etc. that were exclusively reserved for Europeans. Gandhiji launched protest and satyagraha against the discrimination against Indians in South Africa. He was himself thrown off a train in South Africa despite having a proper first-class ticket because he was not a white. Sudha Chandran is a famous dancer and TV actress. One of her legs had to be amputated. She got her Jaipur foot fixed. She continued dancing. Her determination and fierce will prevailed over her disability. In India itself, caste-based discrimination has been followed since ages. People from lower castes were maltreated by upper caste people. Even a touch or shadow of an untouchable or a Dalit was supposed to pollute a member of the upper caste. He was not allowed to draw water from the common well or attend a common dinner. The government has categorized the castes as upper caste, general category, other backward class, scheduled caste or Dalits, scheduled tribes or Adivasis. Caste-based discrimination is well brought out in many stories by Prem Chand, a celebrated Hindi story writer and novelist. In his story Thakur Ka Kuan, Thakur's well, a low-caste wage earner is forced to drink dirty and stinking water. His wife goes to fetch clean water from the Thakur's well under the cover of darkness. As she tries to lower the bucket into the well, the Thakur gets up to inquire about the noise. Out of fear, she drops the bucket into the well and returns home empty-handed. Her waiting husband is compelled to quench his thirst by drinking impure water. Such was the fear of punishment. People who lack resources and don't have money to buy basic needs like food, dress and housing are discriminated against in schools, colleges, offices, public places, etc. Tribals or people from the scheduled tribes were also treated badly. They were looked down upon as untouchable, impure, poor, backward and illiterate. Their black skin, uncouth appearance and semi-naked body added to hatred and dislike against them. We follow discrimination on the basis of activities and professions too. Activities like cleaning, washing, hair cutting, garbage picking are looked down upon. Those who are engineers, doctors, lawyers and officers are appreciated and praised. Their status is higher in our society. ठीक है, तो कल हमने पढ़ा था कि डाइवर्सिटी होती है ना, कंट्री में डाइवर्सिटी है सब तरफ. फिर हमने पढ़ा कि प्रेजुडाइसेस होते हैं. लोग जो हैं जैसे कि सदियों से सुनते आ रहे हैं, नेगेटिव फीलिंग्स उनकी किसी कम्युनिटी के प्रति रहती है और उसको वो नेगेटिवली ही जज कर देते हैं. वो सोचते हैं कि एक दो लोग ऐसे हैं तो पूरा कम्युनिटी ही ऐसा ख़राब होगा. ये प्रेजुडाइस है. वो लोग उस कम्युनिटी या उस पर्टिकुलर लोगों के प्रति या इंडिविजुअल के प्रति उनका नेगेटिव फीलिंग्स ही हमेशा रह जाता है. वो प्रेजुडाइज है. ठीक है. इसके बाद हमने स्टीरियोटाइप्स पढ़ा था कि एक माइंड सेट लोगों ने बना लिया है कि हाँ ये ऐसा ही है. वो स्टीरियोटाइप्स है. गर्ल्स को बॉयज़ को जो है डॉल से नहीं खेलना चाहिए, ये एक स्टीरियोटाइप है. ठीक है, ये हमने पढ़ा था कि स्टीरियोटाइप है. जैसे कि फॉरेन के लोगों ने इंडिया को एक बहुत ही पुअर कंट्री ऑफ स्नेक चार्मर्स ऐसा समझ लिया था. वो नॉट एजुकेटेड, नॉट वेल एजुकेटेड ऐसा समझ लिया था. ठीक है, तो ये सब स्टीरियोटाइप क्रिएट हो जाता है किसी पर्टिकुलर कंट्री, इंडिविजुअल, कास्ट, कम्युनिटी के प्रति. ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन. जब लोग जो है जो प्रेजुडाइज अपने मन में बैठा के रखे हैं और जो स्टीरियोटाइप है, ठीक है, जो स्टीरियोटाइप उन्होंने बना रखा है, जब उस पे वो लोग एक्ट करते हैं, उसी के हिसाब से चलते हैं, तब जाके क्या होता है, इनइक्वालिटी उत्पन्न होता है. हाँ, इनइक्वालिटी का जन्म होता है. इट ब्रीड्स इनइक्वालिटी. जब लोग प्रेजुडाइज और स्टीरियोटाइप को एक्टिवली फॉलो करते हैं अपने लाइफ में, तो इनइक्वालिटी का जन्म होता है. ठीक है, एक एग्जाम्पल है. देखिए, एक अपार्थाइड एरा होता है. साउथ अफ्रीका में क्या था, जैसे हमारे कंट्री में ब्रिटिशर्स का रूल था, इसी तरह साउथ अफ्रीका में जो है यूरोपियंस रूल कर रहे थे. तो वो लोग जो है वहाँ पे एक अपार्थाइड एरा था. यानी कि उस टाइम जो है वो लोग
यूरोपियंस वाइट कलर्ड स्किन थे, तो वो लोग साउथ अफ्रीकन लोगों को, और जो वहाँ इंडियंस थे जो कि दे वर नॉट सो वाइट एंड ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन या डार्क कलर्ड स्किन थे, उनके खिलाफ काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन वो लोग करते थे, उनके खिलाफ अन्याय करते थे। उन्हें सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती थी, यहाँ तक कि क्लब्स में उन्हें जाने का अलाउ नहीं था, परमिशन नहीं था। कोई कोई सी बीचेज स्पेशली यूरोपियंस के लिए ही रिजर्व थे कि उसमें से वाइट्स लोग जा सकेंगे। इसी तरह जो है रेलवे का जो फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट होता था वो भी सिर्फ वाइट्स लोग के लिए ही था, ठीक है। वहाँ पे ये लोग ब्लैक लोग को एंटर करने ही नहीं देते थे, जबकि वो ब्लैक कंट्री नेटिव ब्लैक लोगों का ही था, है ना, जो कि ब्लैक इन स्किन कलर थे, ब्लैक रेस के थे। कंट्री उन्हीं लोग का था, पर यूरोपियंस वहाँ पे रूल कर रहे थे, ठीक है। उन लोग को क्लब्स, पार्क्स, होटल्स या फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट रेलवे कंपार्टमेंट में उनको ट्रैवल करने नहीं दिया जाता था, ठीक है। वहाँ पे साउथ अफ्रीका में ब्लैक्स और इंडियंस के खिलाफ शोषण हो रहा था, अन्याय हो रहा था, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, ठीक है। तब गांधी जी ने वहाँ एक आंदोलन लॉन्च किया, उन्होंने अपोज किया कि नहीं, जो इंडियंस के खिलाफ यहाँ पे हो रहा है बिहेवियर ये ठीक नहीं है, ठीक है। और उन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट किया, बोला सत्य के लिए वो आंदोलन करेंगे, हाँ, ट्रुथ के लिए, और जो भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जो अन्याय हो रहा है इंडियंस के खिलाफ, उसके लिए उन्होंने एक आंदोलन वहाँ पे शुरू किया, ठीक है, साउथ अफ्रीका में। इसमें क्या हुआ था कि गांधी जी के साथ भी उस टाइम ख़राब बिहेवियर हुआ था। उन्होंने एक बार रेलवे कंपार्टमेंट के फर्स्ट क्लास का टिकट लिया था और वो उसमें ट्रैवल कर रहे थे, तो उन्हें जो यूरोपियन लोगों ने था उन्होंने कहा कि नहीं, आप इसमें ट्रैवल नहीं कर सकते, आप चूँकि ब्लैक हैं, आप इंडियन हैं, तो उन्हें उतार के ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था, ठीक है, जबकि उनके पास एक टिकट भी था फर्स्ट क्लास का। तो इस तरह से अन्याय हो रहा था साउथ अफ्रीका में, तो गांधी जी ने उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया था। तो ये क्या है, ये जो प्रेजुडाइस यूरोपियन ने अपने मन में बैठा रखा था कि नहीं, ये जो ब्लैक लोग हैं वो लोग डर्टी हैं, ये लोग सिविलाइज नहीं है, उसी का नतीजा था कि डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे स्टार्ट हुआ और इनइक्वालिटी हुआ। लोगों को अलाउ, सब लोग को इक्वल परमिशन नहीं मिला कि सब लोग सारी जगह पे जा सकें, ठीक है। तो इनइक्वालिटी ब्रीड हुआ वहाँ पे। इसी तरह सुधा चंद्रन जो है वो एक फेमस डांसर है और साथ ही साथ जो है वो टीवी में एक्ट्रेस भी है, वो बहुत सारे सीरियल्स में उन्होंने काम किया है। तो उनका क्या होता है, एक एक्सीडेंट में उनके एक पैर में बैक्टीरिया सेट इन हो गया था, एक डिजीज़ सेट इन हो गया था, जिसके कारण उनके पैर को काटना पड़ा ताकि उनकी जान बचाई जा सके। उसके बाद उन्होंने उसमें आर्टिफिशियल लेग लगाया, प्रोस्थेटिक लेग जो बोलते हैं, अपने पैरों में लगाया, जिसे जयपुर फुट कहते हैं, ठीक है, वो उन्होंने लगाया। फिर जो है, जैसा हमने पहले भी पढ़ा लेसन में कि लोग हैंडीकैप्ड जो होते हैं उनके खराब भी लोग स्टीरियोटाइप बैठा लेते हैं मन में ना, या प्रेजुडाइस रखते हैं कि ये लोग तो सोसाइटी के बेकार लोग हैं, इनको पीछे धकेल दो, इनको मौका नहीं दो आगे बढ़ने का, ठीक है। ऐसा लोग मन में बैठा लेते हैं मेंटली चैलेंज या फिज़िकली चैलेंज लोगों को। पर सुधा चंद्रन ने पूरा अपने जयपुर फुट लगाने के बाद उन्होंने दोबारा डांस शुरू करा और वो बहुत ही सक्सेसफुल टीवी एक्ट्रेस भी बनी, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनका ये डिटर्मिनेशन था, उनका ये पक्का इरादा था और बहुत ही स्ट्रॉन्ग इच्छा थी उनकी कि वो जो है, उनकी जो डिसेबिलिटी उनके बॉडी में आ गई है, उनका जो एक पैर काम नहीं कर रहा, पैर काटना पड़ा, उसके खिलाफ वो आगे बढ़ी। ऑल्दो लोग बोल रहे थे कि नहीं, ये अब तो किसी काम की नहीं, रहने दो इन्हें, घर में रहने दो, और उसके खिलाफ उन्होंने आगे बढ़ी, ठीक है। इसी तरह इंडिया की अब हम लोग बात करें, साउथ अफ्रीका की बात कर ली, इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन सालों से चलता आ रहा है। हाँ, एक पर्टिकुलर कास्ट या लोअर क्लास कास्ट लोगों के प्रति बहुत ही अन्याय इंडिया में हो रहा है, ठीक है। लोअर कास्ट के लोगों के साथ मैल ट्रीटमेंट हो रहा है, बुरी तरह से ट्रीटमेंट हो रहा है। कौन लोग बुरा तरह का ट्रीटमेंट कर रहे हैं? अपर कास्ट के लोग बुरा ट्रीटमेंट कर रहे हैं। पहले गांव सब में क्या होता था कि वहाँ पे जो ये लोअर कास्ट के लोग हैं उनको गांव के बाहर के एरिया में रहने के लिए बोला जाता था, ठीक है। अगर उन्होंने किसी, और उनको अनटचेबल्स बोला जाता था क्योंकि उनको क्लीनिंग वगैरह का काम दिया जाता था। तो अगर वो उन्होंने किसी अपर कास्ट आदमी को टच कर लिया या किसी ग्लास में पानी पी लिया तो वो ग्लास को और अपर कास्ट के लोग टच भी नहीं करते थे। यहाँ तक कि उनका शैडो भी अगर पड़ गया, उनका छाया भी किसी अपर कास्ट लोगों पे हो गया तो लोग जाके नहाते वहाते थे, इतना उनको अनटचेबल समझते थे, हैं, कि उनका छाया भी नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। उन लोगों को दलित कहा जाता था और ये माना जाता था कि वो अगर अपर कास्ट के कांटेक्ट में आसपास आएंगे तो अपर कास्ट वाले लोग
प्रदूषित हो जाएंगे, पॉल्यूटेड हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक कि उनको जो है गांव में अलग अलग एरिया में कुआं था, तो कुछ कुआं सब जो था वो अपर कास्ट वालों को लिए रिजर्व था। उस कुएं का पानी ये लोअर कास्ट के लोगों को पीना भी मना था, और वो लोग वहाँ से उस लोअर कास्ट लोग उस कुएं का पानी निकाल भी नहीं सकते थे। क्या मानते थे अपर कास्ट लोग कि अगर लोअर कास्ट लोग उस कुएं का पानी को टच कर लेंगे या कुएं में बकेट डालेंगे तो वो कुआं भी पॉल्यूटेड हो जाएगा, है ना, कुएं का पानी भी पॉल्यूटेड हो जाएगा। ठीक है, इसका एक बहुत ही अच्छा प्रेमचंद जो है हिंदी के बहुत बड़े नॉवलिस्ट हैं। ठीक है, तो उन्होंने अपनी बहुत सारी स्टोरीज़ लिखी है सोसाइटी के ऊपर। तो उसी में उन्होंने एक स्टोरी लिखी थी ठाकुर का कुआं। ठीक है, उसमें इसे यही बताया गया है कि एक लो कास्ट की वुमेन थी, उसके पति को बहुत प्यास लगी थी, पानी कहीं नहीं था, तो रात के अंधेरे में वो जाती है और एक अपर कास्ट वाले लोग जहाँ जिस कुएं से पानी लेते हैं वो वहाँ से बकेट डालती है पानी खींचने के लिए। पर उसी वक्त जो है वो जो अपर कास्ट का आदमी था ठाकुर जी, जो वह उठ जाता है और पता करने आता है कि क्या हो रहा है। जब उसके पैरों की हाट यह सुनती है तो यह भाग चली आती है, बकेट को वहीं फेंक फाक के वो अपने घर वापस चली आती है, क्योंकि उसे डर था कि इसे बुरी तरह से सज़ा दे दी जाएगी, इसे मारा पीटा जाएगा या इसे निकाल दिया जाएगा, गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। जब वह घर लौटती है तो उसका पति बहुत ही प्यास से, उसकी हालत ख़राब है, तो वो जो तालाब का जो गंदा पानी होता है, डर्टी वाटर, वो ही वॉज फोर्स टू ड्रिंक दैट वाटर, है ना, उसको मजबूरन वही पानी पीना पड़ता है। तो देखिए कितना बताता है कि पानी जो एक बेसिक नीड है हर एक ह्यूमन बीइंग का, जो कि उनका अधिकार है कि हर आदमी को ड्रिंकिंग वाटर मिले, प्योर ड्रिंकिंग वाटर मिले, वो भी ये अपर कास्ट वाले उनको पीने नहीं दे रहे थे। तो ये कितना, मतलब ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ है ऐसा काम करना। ठीक है, अब आप लोग आगे जानेंगे कि ये जो लोअर कास्ट के लोग थे जिनको अनटचेबल या दलित्स बोलते थे, उन लोग को कॉमन जगह से तो पानी लेने तो नहीं देते थे अपर कास्ट वाले, साथ ही साथ कॉमन डिनर में भी नहीं बैठने देते थे। अगर गांव में कोई भोज हो रहा है तो जो है अपर कास्ट वाले अलग रूम में बैठ के खाते थे, लोअर कास्ट वाले नीचे की तरफ दूसरे रूम में बाहर की तरफ गंदी एरिया में बैठ के उनको खाना खाना पड़ता था। ठीक है, अगर आपने B.R. अम्बेडकर का सीरियल टीवी में देखा है तो उसमें आप ये सब चीज़ें आसानी से देख सकेंगे कि किस तरह से उनसे ट्रीटमेंट होता था। अब है हमारे कंट्री में गवर्नमेंट ने कैटेगराइज कर दिया है कास्ट को। कुछ है जो अपर कास्ट वाले हैं जिन्हें जनरल कैटेगरी को कहते हैं। ठीक है, अब कुछ है जो थोड़े बैकवर्ड क्लासेस हैं जिनको कि आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला है, उन्हें वह OBC कहते हैं, ओनली बैकवर्ड क्लासेस, या अदर बैकवर्ड क्लासेस कहते हैं। कुछ है जो कि शेड्यूल कास्ट और दलित्स लोग हैं, है ना, चूँकि पुराने समय में कास्ट सिस्टम इस तरह से डिवाइड कर दिया गया था कि लोगों ने कुछ लोगों को कह दिया कि नहीं तुम शेड्यूल कास्ट हो, तुम गांव की गंदे गंदे काम करोगे, सफाई करोगे, नालों की सफाई करोगे, बाथरूम्स की सफाई करोगे, हाँ, तो उन्हें ही वो दलित या अनटचेबल कहते थे। तो उन्हें अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है, वो शेड्यूल कास्ट में आते हैं और गवर्नमेंट उन्हीं के लिए रिजर्वेशन रख रहा है उन्हें आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, और एक फोर्थ कैटेगरी जो है वो शेड्यूल ट्राइब और आदिवासीज़ हैं, कि ये जो ट्राइबल पीपल जो जंगल में रहते थे उन्हें भी मौका नहीं मिला, उनकी ज़मीनें छीन ली गई, क्योंकि बेसिकली उन लोगों का फार्मिंग ही ऑक्यूपेशन था, तो उनकी ज़मीन अपर कास्ट वालों ने धोखे से, चालाकी से उनसे छीन ली। इस तरह वो उनमें इतनी पॉवर्टी आ गई कि वो पीछे ही रह गए, इलिटरेट रह गए, पढ़ाई लिखाई नहीं कर सके, आगे बढ़ नहीं सके। तो गवर्नमेंट उनके लिए अभी एजुकेशन का भी चांसेस दे रहा है, फ्री एजुकेशन का भी, और जॉब में भी उनके लिए गवर्नमेंट रिजर्वेशन रख रहा है ताकि वो भी आगे बढ़ सके। ठीक है, जिन लोगों के पास रिसोर्सेज का कमी होता है, जैसे कि मैं ये आदिवासी की बात कर रही हूँ, इनकी ज़मीन छीन ली गई, इन्हें और इनका कोई ऑक्यूपेशन नहीं रहा, पैसे ये नहीं कमा सके, तो इनका रिसोर्स ही छीन लिया गया जिससे ये इनकम करते। तो अब उनके पास पैसे भी नहीं थे कि वो अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरा कर सके, जैसे कि खाने का, कपड़े का और रहने का। घर भी वो नहीं बना पा रहे थे और वो सोसाइटी में पीछे की तरफ ही पुश होते जा रहे थे। ठीक है, जब वो पॉवर्टी में आ गए तो फिर उन लोगों के खिलाफ बाकी लोग और भी अन्याय करने लगे। जब देखे कि अरे ये तो वीक पड़ गए हैं, ये तो पॉवर्टी है इनका, गरीबी है, तो यहाँ तक कि स्कूल्स में भी ST बच्चों से सब अलग रहने लगे, कॉलेजेस में भी ऐसा होने लगा, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस में भी, पब्लिक प्लेसेस में भी लोग उनके साथ बैड ट्रीटमेंट करने लगे। ठीक है, उनके साथ बहुत ही बैड ट्रीटमेंट होता था शेड्यूल ट्राइब के लोगों के साथ।
उनको डाउन अपॉन देखा जाता था, उनको नीचा देखा जाता था, उनको अनटचेबल माना जाता था, उनको इम्प्योर मानते थे, बोलते थे ये शुद्ध नहीं है, गरीब है और बैकवर्ड है, पिछड़े हुए हैं, इनकी सोच पिछड़ी हुई है, ये इलिटरेट है, मतलब अनपढ़ है। ये सब क्यों हुआ था? क्योंकि उनके रिसोर्सेज अपर कास्ट वालों ने छीन लिया था, ठीक है। उनके ब्लैक स्किन को लोग पसंद नहीं करते थे अपर कास्ट वाले, उनका अनकाउथ अपीयरेंस, थोड़ा जो है उनका जो बॉडी का फीचर्स है चेहरे वहरे का, वो लोगों को पसंद नहीं आता था। हाँ, और चूँकि वो जंगल में रहते थे तो वो सेमी नेकेड बॉडी रहता था, वो लोग आधे आधे कपड़े पहनते थे, है ना, जो जेंट्स लोग हैं। तो लोग कहते थे अरे ये तो पूरे इलिटरेट है, कपड़े भी पहनना नहीं जानते ढंग से, ठीक है। तो उसके खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ लोगों के मन में बहुत ही मतलब नफ़रत की जैसा हो गया और लोग उनको डिसलाइक करने लगे इन सब भी बातों से, ठीक है। मैं भी कहूँगी कि ये भी एक प्रेजुडाइज था कि जो है लोग एक नेगेटिव फीलिंग बना लिए थे एसटीज़ के बारे में कि ये एसटी सब अच्छे लोग नहीं हैं, ठीक है, और उनको कई तरह तरह के नामों से पुकारते थे। तो आप देख रहे हैं कि हर जगह जो है डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, डेली बेसिस में भी हमारे आसपास भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है। जो है इसी तरह प्रोफेशंस में या डे टू डे एक्टिविटीज़ जो लोग काम कर रहे हैं या जिस तरह के काम में हैं, जॉब में हैं, उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसमें भी उनके खिलाफ अन्याय हो रहा है, मैल ट्रीटमेंट हो रहा है, बैड ट्रीटमेंट हो रहा है। जैसे कि जो लोग सफाई करते हैं, सफाई कर्मी होते हैं, रोड की सफाई करेंगे, ऑफिसेस की सफाई करेंगे, टॉयलेट्स की सफाई करेंगे, जो बाल काटेंगे या जो कचरा उठा के जाके बाहर फेंकेंगे, उनको नीचा देखा जाता है, उनको कुछ वैल्यू नहीं दिया जाता है, बोलता है ये ऐसे ही गंदे लोग हैं। क्यों? जबकि वो तो सोसाइटी की गंदगी को ही साफ़ कर रहे हैं, पर उन्हें गंदा माना जाता है। और उसी तरह डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, ये सब जो रहेंगे, वकील, ऑफिसर्स लोग जो रहेंगे, उनकी बहुत तारीफ़ की जाती है और उन्हें बहुत ही मान सम्मान दिया जाता है। उनको हायर स्टेटस होता है सोसाइटी में, उनको ऊंचा स्टेटस का मानते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हर तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कहीं कास्ट के बेसिस पे, कहीं पे स्किन के कलर पे, कहीं अपीयरेंस पे, कहीं जॉब के हिसाब से, ठीक है ना। आपने अगर मेरा पार्ट 1 का वीडियो सुना होगा तो उसमें मैंने एक बहुत अच्छा JNU का एग्जाम्पल दिया था। तो आप देख रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन जो है, मैल ट्रीटमेंट सोसाइटी के कुछ लोगों के साथ होता आ रहा है और उसे बहुत कोशिश कर रहा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स बना है उसे रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। Caste system. Have you ever thought why this happened? In ancient times, our society was divided into 4 classes: Brahman, Kshatriya, Vaishya and Sudras. The Brahmins were supposed to be the princes, priests and teachers. It was the duty of the Kshatriya to rule as kings and administrators. The Vaishyas had to work as peasants and merchants. The Shudras were supposed to do manual and lowly jobs for the 3 upper classes. Thus, occupation-based discrimination has its origin in the Varna system of ancient Indian society. For the same crime, punishment was harsher for Shudras than that for other 3 classes. Only Brahmins were allowed to read the Vedas and other sacred literature. Gradually, the 4 Varnas got subdivided into several castes. The caste proliferated into dozens of subcastes. Descendants of Shudras came to be known as Harijans or Dalits. ठीक है। तो ये जो कास्ट सिस्टम है, जो अभी ये मैल ट्रीटमेंट हो रहा है सोसाइटी में कुछ कास्ट के लोगों के साथ, इसका ओरिजिन कहाँ है, इसकी शुरुआत कैसे है? तो जब हमारा एंशंट इंडिया था, बहुत ही पुराने समय में इंडिया में क्या हुआ था कि कुछ लोगों ने ही, जो कि थोड़े पावरफुल लोग थे, उन लोगों ने ही सोसाइटी को 4 अलग अलग कास्ट में डिवाइड कर दिया था, ठीक है। उन लोगों ने सोसाइटी को डिवाइड कर दिया। जो गुड लुकिंग लोग थे, चालाक लोग थे, उन लोगों ने अपने आप को ब्राह्मण घोषित कर दिया कि नहीं, हम ब्राह्मण हैं, ठीक है। और वो उन्होंने कहा कि हमारा यह ड्यूटी है कि हम जो है, हम ही पुजारी बनेंगे मंदिरों में और हम ही टीचर बनेंगे, हम ही गुरुकुल में टीचर बनेंगे, हम जो ब्राह्मण हैं वो ही, हाँ, उस पर। और किसी को उन्होंने दूसरे कास्ट के लोगों को ये सब प्रोफेशन अपनाने नहीं दिया। उसी के बाद सेकंड जो कास्ट था वो था क्षत्रिय। क्षत्रिय को क्या काम दिया गया कि वो राजा की जैसा राज्य करेंगे और एडमिनिस्ट्रेटर का काम करेंगे, मतलब कि अपनी पूरे प्रजा का काम को चलाएंगे, प्रजा के डायरेक्टर के जैसे रहेंगे, प्रजा कैसे ठीक तरीके से जिए, कैसे काम काज करे, ये सब वो डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, मतलब गवर्नमेंट बन के वो रहेंगे। फिर जो तीसरा कास्ट था, वैश्यास था, उनको बोला गया कि नहीं, जो
ब्राह्मण तो लोग ने क्या किया कि अच्छे अच्छे दिखने वाले अपने आप को ब्राह्मण घोषित कर लिए, क्षत्रिय घोषित कर लिए। फिर जो थोड़े सिंपल दिखते थे उनको उन्होंने बोल दिया नहीं नहीं तुम लोग वैश्य हो और तुम लोग तो शुरू से ये व्यापारी का काम कर रहे हो, दुकान लगा रहे हो, सामान बेच रहे हो, हाँ तो तुम लोग को ऐसे ही तुम लोग खेती करो और व्यापारी का काम करो। उसी तरह फिर उन्होंने क्या किया कि जो थोड़े गुड लुकिंग लोग नहीं थे उनको उन्होंने शूद्रास डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। और उन शूद्रास को उन्होंने बोला कि तुम लोग को क्या करना है, तुमको मैनुअल एंड लोली जॉब्स करना है ना, कि तुम लोग को जो है ऐसे काम करने जो मशीन नहीं कर सके और छोटे छोटे नौकरी करनी है। किनके लिए? ये जो 3 अपर कास्ट लोग हैं उनके लिए तुम लोग को सर्विस देना है, उनके लिए काम करना है, ठीक है। उन्हें बोला गया कि तुम्हें ड्रेन सफाई करनी है, रोड पे झाड़ू लगाना है और टॉयलेट्स क्लीन करना है, ये सब काम शूद्रास को दिया गया। और साथ ही साथ वो लोग करते तो थे पर उन्हें इन लोग अनटचेबल भी कहने लगे। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, कास्ट के हिसाब से जो अन्याय हो रहा है, इसका ओरिजिन कहाँ है? इसकी शुरुआत एंशंट इंडिया में ही हो गई थी, जब वर्ण सिस्टम बन गया था इंडिया में, या कास्ट सिस्टम बना दिया गया था इंडियन सोसाइटी में, है ना। इंडियन समाज में जब वर्ण सिस्टम बन गया या कास्ट सिस्टम बन गया, उसी समय ये ऑक्यूपेशन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होने लगा था। ऑक्यूपेशन के हिसाब से कास्ट को डिवाइड कर दिया गया और वही जो जैसा ऑक्यूपेशन है उस हिसाब से उसे मान सम्मान देने लगे, और जो थोड़ा लोअर ऑक्यूपेशन था उनको उनके साथ अन्याय करने लगे, बैड ट्रीटमेंट करने लगे। अब कोई गलती उस समय, कोई क्राइम जो है, मान लीजिए वो किसी क्षत्रिय ने भी की है और किसी शूद्र ने भी नहीं की है, दोनों ने सेम गलती की, दोनों ने मान लीजिए चोरी की है, तो शूद्र का पनिशमेंट ज़्यादा स्ट्रिक्ट और हार्ड पनिशमेंट शूद्र को दिया जाता था, ठीक है। और क्षत्रिय को बहुत हल्का सा पनिशमेंट दिया जाता था या उन्हें माफ़ कर दिया जाता था, ठीक है। और उस वक्त उन्होंने इतना रेस्ट्रिक्शन सोसाइटी में बना के रखा था कि ब्राह्मण्स को उन्होंने सिर्फ अलाउ किया था कि जो वेद पढ़ सके, और दूसरे कास्ट के लोग वेद नहीं पढ़ सकते थे। साथ ही ब्राह्मण्स ही हैं जो बहुत ही साधु महात्मा के जो साहित्य की किताब है या पूजा पाठ के जो किताब है, सेक्रेट लिटरेचर या बड़े बड़े ग्रंथ जो हैं, वो भी उन्होंने अलाउ किया सिर्फ साधु महात्मा, ये इनको ही ब्राह्मण्स को पढ़ने के लिए सेक्रेट लिटरेचर, मतलब कि बहुत ही ऐसा साहित्य, ऐसी बुक्स जो कि इंडिया के कहना चाहिए कि वेद से जुड़ी हुई साधु महात्मा ने जिन बुक्स को लिखा है, अच्छी किताबें जो जीवन जीने का ढंग बताती है, वो सब उन्होंने सिर्फ ब्राह्मण्स को ही पढ़ने के लिए अलाउ किया था, ठीक है। धीरे धीरे क्या हुआ कि ये 4 वर्ण तो सबसे शुरुआत में थे, 4 कास्ट, फिर ये टुकड़ों में और बढ़ गए, ठीक है। और एक एक कास्ट सेवरल अदर कास्ट में टुकड़ों में बच गया, ठीक है। एक कास्ट के भीतर और छोटे छोटे कास्ट उसी से रिलेटेड आ गए, जिन्हें सब कास्ट कहा जाने लगा, हाँ। तो डजन्स ऑफ सब कास्ट हो गया, है ना। एक कास्ट के भीतर 12 13 सब कास्ट उसके हो गए, ठीक है। तो और फिर वह और भी छोटे छोटे कास्ट में डिवाइड हो गया। तो इस तरह अभी बहुत सारे कास्ट हैं इंडिया में। जो शूद्रास के जो डिसेंडेंट्स थे, जो शूद्रा के आगे पीढ़ी के लोग जो थे, जो कि शूद्रा के बच्चों के बच्चों के बच्चों, ये सब जो आते गए, उन्हें क्या कहने लगे वो लोग? उन्हें उसे हरिजन या दलित कहना शुरू कर दिए, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, Dr. Bhimrao Ambedkar, 1891 to 1956, was the chairman of the Constitution Drafting Committee. He had the greatest influence on Indian Constitution. Hence, he is known as the father of Indian Constitution. He was a great Dalit leader who fought for the rights of the Harijans or the downtrodden castes. He was born in Mau in central province of Madhya Pradesh in a Mahar family, which was considered as untouchable. He went to England to study law and became a lawyer. Throughout his life, he championed the cause of Dalits and fought for granting equality and justice to Dalits. He encouraged Dalits to send their children to schools. Youth was encouraged to join various government jobs. He urged them to take up other occupations and professions and give up the hereditary occupation. He advocated the entry of Dalits into all Hindu temples. He led a protest on many occasions. Later on, he converted to Buddhism as he thought it treated all people equality. Dr. Ambedkar himself had to face severe discrimination at the hands of the upper caste. Let's recount some of his bitter experiences of caste discrimination. The first experience of caste-based discrimination by B.R. Ambedkar. One summer day, he and his elder brother with their
little nephew sent out to meet their father, who worked as a cashier in Koregaon. They got in at Padli railway station and travelled up to Masoor. As their father had not received their letter in time, so he didn't turn up at the station. After they had waited for an hour at the station master turned up and asked many questions. As they were well-dressed children, he thought they were Brahmins. On being asked his caste, Bhim Rao replied honestly that he belonged to Mahar community. Suddenly, the station master's attitude changed. He went away. When he returned, the children requested him to hire a bullock cart. As the information had gone round around the cartmen that the children were untouchables, no one was ready to carry them. They were afraid of being polluted. The children were prepared to pay double the fare, but no cartman was ready. Ultimately, one cartman who didn't know their identity agreed to take them. Hardly had the cart gone a few yards when the cartman came to know their caste. In a fit of rage, the children were thrown out, but the boys soothed the cartman's anger by sweet talk and by paying double the fare. Bhim's elder brother drove the cart, with the cartman following the cart on foot because of the fear of being polluted. Nowhere did they get drinking water on the way. Every time people either pointed to the filthy water or asked them to go away. This was the first huge shock for the young and budding mind of Bhim. That day he knew that he belonged to a family that was untouchable, condemned to drink and eat filthy things. A few days later, this impression became confirmed. Mad with thirst, one day Bhim was drinking water stealthily at a public well. He was discovered and was beaten black and blue. On another occasion, a barber refused to give him a haircut on the pretext that his hair would defile the purity of the razor and him as well. So Bhim's sister cut his hair. ठीक है, तो जब अन्याय हुआ उसके खिलाफ किसने आवाज़ उठाई? ठीक है, एक हमारे बहुत बड़े लीडर थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिनका जन्म 1891 में हुआ था और वो मरे थे 1956 में। वो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना इंडिपेंडेंट इंडिया में, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, यानी कि जिन मेंबर्स लोग मिलके जो कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे थे उसके वो चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के। ठीक है, और उनका बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे, उनके आइडियाज़ को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत डाला गया है। ठीक है, इसलिए उनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, वो एक दलित लीडर थे, वो दलित कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, दलित लीडर थे, और वो जो है ये दलित या हरिजन्स के राइट के लिए वो अपनी पूरी ज़िंदगी लड़ते रहे। हाँ, या फिर उन लोगों के लिए भी लड़े जो डाउन ट्रोडन कास्ट थे, जो कि बहुत ही लो कास्ट जिनको सोसाइटी मान रही थी, उनके लिए भी वो पूरी ज़िंदगी लड़ाई करते रहे। वो सेंट्रल प्रोविंस जो था मध्य प्रदेश का जो एक एरिया था सेंट्रल प्रोविंस, उसमें माऊ डिस्ट्रिक्ट जो था वहाँ पे उनका जन्म हुआ था, एक महार फैमिली में। महार फैमिली जो था वो उस समय अनटचेबल माना जाता था, उन्हें शूद्र माना जाता था और वो अनटचेबल उन्हें माना जाता था। उन्होंने काफ़ी पढ़ाई की, वो इंग्लैंड चले गए, इंग्लैंड में वो लॉ पढ़कर आए, कानून की पढ़ाई की और वो एक लॉयर बन गए, एक वकील बन गए। पूरी जीवन उन्होंने क्या किया, वो कोशिश करते रहे कि दलित्स को इक्वालिटी मिले, दलित्स के लिए वो लड़ाई करते रहे, आवाज़ उठाते रहे कि दलित लोग को इक्वालिटी मिले और न्याय मिले। वो दलित लोगों को रिक्वेस्ट करते थे कि अपने बच्चों को तुम लोग पढ़ने भेजो, हायर स्टडीज़ कराओ और उन्हें बड़े बड़े दूसरे नौकरियों में, बड़े बड़े प्रोफेशन में भेजो, ना कि तुम्हारा जो हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन है, जो तुम्हारा पीढ़ियों से चला आ रहा है साफ़ सफाई करने का काम, उससे उन्हें निकालो। हाँ, इस तरह का गंदे काम करने से उन्हें निकालो और उन्हें बड़े बड़े नौकरियों में भेजो, उन्हें पढ़ाओ लिखाओ, उनको गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करने के लिए वो रिक्वेस्ट करते थे। ठीक है, वो उस वक्त यह था कि दलितों को हिंदू मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता, तो उसके लिए भी उन्होंने लड़ाई की कि नहीं, सारे ह्यूमंस इक्वल है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा भी है, तो इन्हें क्यों नहीं मंदिरों में घुसना दिया जाएगा। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे मौक़ों पे उन्होंने आंदोलन किया है। धीरे धीरे बहुत जब उनका जीवन बीत गया तब वह बुद्धिज़्म जो है बुद्धिस्ट वो बन गए, उन्होंने बुद्धिस्ट धर्म अपना लिया क्योंकि उन्हें बुद्धिस्ट धर्म की सारा रूल्स अच्छा लगा। उन्होंने देखा कि बुद्धिज़्म में सब लोग को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता है, वहाँ पे कास्ट सिस्टम नहीं है, इसलिए उन्होंने बुद्धिज़्म धर्म को अपना लिया। ठीक है, कई बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है उन बहुत ही मैल ट्रीटमेंट उनके साथ भी हुआ, बुरी तरह से मैल ट्रीटमेंट हुआ, सीवियर डिस्क्रिमिनेशन, मैंने बहुत ही अन्याय उनके साथ हुआ। किन लोग के थ्रू? अपर कास्ट के लोगों ने उनके साथ अन्याय किया। एक ऐसा ही यहाँ पे उनकी एक स्टोरी दी गई है कि उन्हें किस तरह से बैड एक्सपीरियंस हुआ।
जो है एक गर्मी के दिनों में वह अपने बड़े भाई के साथ और अपने भतीजे के साथ अपने पिता से मिलने चल पड़े थे, जो कि पिता रहते थे कहीं दूसरे शहर में। कोरेगांव एक शहर था, वहाँ पे वो कैशियर थे, है ना, नौकरी में थे। ये लोग पडली रेलवे स्टेशन में चढ़े और मसूर तक ट्रेन में ये लोग गए। फिर ठीक है, फिर इनके पिता को चिट्ठी समय पे नहीं मिल पाई थी कि ये लोग आ रहे हैं, इसलिए वह इन्हें लेने स्टेशन नहीं आ पाए। ठीक है, जब ये लोग स्टेशन पे 1 घंटे तक रुके रहे तो स्टेशन मास्टर आया और उनसे बहुत सवाल करने लगा। और ये बच्चे अच्छे पढ़े लिखे घर के थे, उन्होंने अच्छे से कपड़े पहन रखे थे, तो स्टेशन मास्टर को लगा कि ये ब्राह्मण है, इसलिए स्टेशन मास्टर जो है उनसे काफ़ी सवाल करने लगा। और जब स्टेशन मास्टर ने उनसे उनका कास्ट पूछा तो भीमराव ने पूरे सच्चाई से बता दिया कि हम दलित कास्ट के हैं। यह सुनकर ही स्टेशन मास्टर का स्वभाव बदल पड़ा, ठीक है, एटीट्यूड बदल गया, वह वापस चला गया। फिर वो कुछ देर बाद जब आया तो बच्चों ने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि हमारे लिए एक बैलगाड़ी की तैयारी कर दे, बैलगाड़ी का इंतज़ाम कर दे, जिससे हम अपने पिता से मिलने जा सकेंगे। पर उस समय तक जो है ये सूचना पूरे रेलवे स्टेशन के पास फैल गई थी, सारे बैलगाड़ियों के मालिकों के पास फैल गई थी कि ये लोग शूद्र कास्ट के हैं, दलित कास्ट के, इसलिए कोई भी बैलगाड़ी वाला उनको ले जाने को तैयार नहीं था। ठीक है, लास्ट में ये लोग बोले कि नहीं, हम डबल पैसे देंगे, पर डबल भाड़ा देंगे, हमें ले जाओ, पर कोई भी बैलगाड़ी वाला तैयार नहीं था उनको ले जाने के लिए। ठीक है, एक बैलगाड़ी वाला तैयार हुआ जो कि नहीं जानता था इनके कास्ट के बारे में, और ये लोग उसमें बैठ गए। वो कुछ ही दूर गया था कि जब उसे पता चल गया और इन्हें उस बैलगाड़ी से फेंक दिया गया बाहर। ठीक है, पर ये जो बच्चे थे उन लोगों ने अपने अच्छी बातें करके, मीठी बातें करके बैलगाड़ी वाले को रेडी किया कि नहीं काका, हमें ले जाओ ले जाओ। तो बैलगाड़ी और डबल पैसे भी देने को ही तैयार हो गए। तब बैलगाड़ी वाले ने कहा कि ठीक है, तुम लोग बैलगाड़ी में बैठो, तुम ही लोग बैलगाड़ी को चलाओगे और मैं पीछे पीछे पैदल चलता हुआ जाऊंगा, क्योंकि उसे डर था कि वो पॉल्यूटेड हो जाएगा। अगर उनके साथ वो बैलगाड़ी में बैठ जाएगा, हाँ, तो वो पॉल्यूटेड हो जाएगा, वो भी अनटचेबल बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ही हुआ। बच्चे लोग, भीमराव के बड़े भाई ने गाड़ी चलाई, बच्चे उस गाड़ी में बैठे और ये गाड़ी वाला पीछे पीछे चल चल के गया। ठीक है, इसी तरह रास्ते सारे इन्हें बहुत प्यास लगती रही, पर इन्हें कहीं भी पीने का पानी नहीं मिला, क्योंकि किसी भी लोगों ने इन्हें कुएं का पानी पीने नहीं दिया, अपर कास्ट के लोग जितने भी थे, क्योंकि ये लोग शूद्र थे। ठीक है, हर वक्त लोग उनको गंदा पानी, पोखरी का, तालाब का गंदा पानी दिखा देते थे और बोलते थे कि जाओ तुम वही पानी को पी ले। ठीक है, तो ये बहुत ही बुरा तरह का और बहुत ही अनपोलाइट, रूड शौक था भीम के दिमाग के लिए, जो कि वह छोटा बच्चा था, जो कि अभी उसका दिमाग बढ़ ही रहा था, वह अभी खिल ही रहा था, और उसको ये बहुत ही शौक लगा। उस दिन उसे समझ में आया कि वो जो अनटचेबल की फैमिली का है वो, और इसीलिए उसे ज़बरदस्ती गंदी चीज़ें खानी पड़ेगी, गंदा पानी पीना पड़ेगा। हाँ, कुछ दिनों के बाद उसके दिमाग में यह इम्प्रेशन पूरा कंफर्म हो गया, वह समझ गया कि हाँ, ऐसा ही ट्रीटमेंट हमारे साथ किया जाता है। एक दिन उसे बहुत ही प्यास लगी थी और कहीं पानी नहीं था, तो वह एक गया और एक पब्लिक का जो कुआं था वहाँ से वह पानी निकाल के पीने लगा। लोगों ने जब वो देखा और जाना कि यह शूद्र कास्ट का है, उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटा, इतना बुरा पीटा कि वो उसका स्किन ब्लैक पड़ गया, कहीं कहीं ब्लू रैशेस भी आ गए। ठीक है, इस तरीके का हो गया। एक बार और एक घटना है कि जब भीमराव अम्बेडकर बाल कटाने गया तो जो बार्बर है, नाई जो है, उसने मना कर दिया कि मैं तुम्हारे बाल नहीं काटूंगा, क्योंकि मेरा जो रेज़र है जिसकी मदद से या मेरे कैंची की मदद से जो मैं तुम्हारे बाल काटूंगा तो वह पॉल्यूटेड हो जाएगा, वो और शुद्ध नहीं रहेगा। तो भीमराव अम्बेडकर की बहन ने उनका बाल घर पे काट दिया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये सब कितने बुरे बुरे इंसिडेंट्स हैं, जो कि एक्चुअली एक ह्यूमन को दूसरे ह्यूमन के साथ कभी भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, these incidents show the intensity of discrimination against Dalits. Even innocent children were not spared. All the cartmen refused to take the children. One who agreed eventually followed the cart on foot from fear of being polluted. The above stories tell us the extent of caste-based discrimination. Dalits were denied respect and dignity befitting human beings. But these shocking and shattering experiences failed to break the spirit and determination of young Bhim. He was the first person from his caste who completed college education and went abroad for study. Later on, he drafted the Indian Constitution. He became the first law minister in Nehru's cabinet. The so-called lower caste didn't want to be called untouchables or even Harijans. They preferred to be called Dalits. They wanted this name to show the world how they have suffered discrimination and social prejudices which have broken. This is what Dalit means. The government calls them scheduled castes.
तो ये जो घटनाएं आपने पढ़ी भीमराव अंबेडकर के बारे में, इससे पता चलता है कि कितना तीव्र था अन्याय जो उन दलित लोगों के खिलाफ हो रहा था। यहाँ तक कि मासूम बच्चे थे जो वो कैसे डर्टी हो सकते, पर मासूम बच्चों के साथ भी बुरा व्यवहार हो रहा था। कोई भी गाड़ी वाला उनको ले जाने को तैयार नहीं था। फाइनली एक गाड़ी वाला जो तैयार हुआ वो भी बोला कि मैं पीछे पीछे पैदल चल के जाऊँगा, मैं गाड़ी में नहीं बैठूँगा, नहीं तो मैं पॉल्यूटेड हो जाऊँगा। ये सारी कहानियाँ हमको बताती हैं कि ये जो कास्ट के कारण जो अन्याय लोगों के साथ हो रहा है, मैल ट्रीटमेंट हो रहा है, वो कितनी दूर तक जा सकता है। ठीक है, दलित लोग जो थे उन्हें रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता था, उनको डिग्निटी, उन्हें मान सम्मान नहीं दिया जाता था, जो कि हर एक ह्यूमन बींग को मिलना चाहिए दूसरे ह्यूमन बींग के हाथों। हाँ, पर ये सब जितना भी शॉकिंग एक्सपीरियंस हुआ, बहुत ही दुखद घटना अनुभव जो हुआ भीमराव अंबेडकर को, पर उसके मन में यह स्पिरिट था, यह पक्का इरादा था कि नहीं, मैं आगे बढ़ूंगा, अपने कम्युनिटी को मैं आगे लेके जाऊंगा। वो पहला पर्सन था दलित कम्युनिटी से जिसने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और जो कि विदेश गया पढ़ाई करने के लिए। बाद में उसने क्या किया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा उसी ने बनाया। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में उसका सबसे बड़ा हाथ था। ठीक है, और जब उसमें नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने अपने कैबिनेट के मिनिस्टर्स कुछ बनाए थे, तो उसमें ये पहले लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया ये बने नेहरू जी के कैबिनेट मिनिस्टर्स में। ठीक है, अब जो है ये लोअर कास्ट लोगों को उस समय पहले क्या बोला जाता था, अनटचेबल या हरिजन बोला जाता। तो इन लोगों ने मना किया कि हमें अनटचेबल और हरिजन आप नहीं बोलो, हमें दलित बोलो। ठीक है, ये दलित का मतलब क्या होता है कि किस तरह से उनके साथ अन्याय हुआ है और जो प्रेजुडाइज उनके खिलाफ था कि गंदे लोग, एक नेगेटिव फीलिंग था, वो किस तरह से टूट रहा है। ये दलित नाम का यही मतलब है। ठीक है, गवर्नमेंट अब उन्हें क्या कहती है, अब गवर्नमेंट उन्हें शेड्यूल कास्ट कहती है। Striving for equality. The struggle for removal of caste-based inequality and for abolition of untouchability gathered momentum during the British Raj. Many prominent personalities, Jyotiba Phule, Sri Narayan Guru, E.V. Ramaswamy Naicker and B.R. Ambedkar came to the forefront of the movement. In the 20th century, the national movement became the main propagator of social reform. Mohandas Karamchand Gandhi coined the term Harijan for untouchables and called for removal of social discrimination against them. When India became free, our leaders were concerned about removing social and economic inequality. Therefore, when the Constitution was written, untouchability was abolished. The fundamental rights guaranteed dignity, freedom and equality to all individuals. Women, children, old people and minorities are given special protection by the Constitution. To bring the lower caste at par in government job, the government has provided for reservation in jobs for scheduled castes 15% and for scheduled tribe 7.5% and other backward classes 27%. The goal of the constitution makers was that all citizens must be considered equal. ठीक है, तो उसके बाद जो है हमेशा लीडर्स की कोशिश रही कि इक्वालिटी हो, सबको एक जैसे अधिकार मिले, उसके लिए वह लोग लगे रहे। ठीक है, ये जो कास्ट के हिसाब से इनइक्वालिटी हो रही थी, कास्ट के हिसाब से असमानता की जा रही थी, लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा था, और ये जो छुआछूत की जो प्रोसेस थी उसको अबॉलिश करने के लिए, अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने के लिए लीडर्स ने बहुत मेहनत की। और जब ब्रिटिश का राज चल रहा था उस समय भी ये लीडर्स ने बहुत ही स्पीडली आंदोलन किया ताकि ये कास्ट बेस्ड अनटचेबिलिटी चली जाए। ठीक है, बहुत बड़े बड़े पर्सनालिटी वाले लोग जो थे, जो जिनका बहुत नाम था, जैसे कि ज्योतिबा फूले थे, श्री नारायण गुरु थे, E.V. रामास्वामी नायकर और B.R. अम्बेडकर, ये लोग इस आंदोलन में सबसे आगे आए ताकि सबको इक्वालिटी मिले, सारे लोगों के साथ समान ट्रीटमेंट हो, भेदभाव मिले। 20th सेंचुरी जब हुआ तो उस समय क्या हुआ था, देश के लिए भी आंदोलन चल रहा था, देश को फ्री करने के लिए भी। तो उस समय सोशल रिफॉर्म भी लोग लीडर्स लोग करने लगे कि नहीं, सोसाइटी को भी रिफॉर्म करना है, ये जो सोसाइटी में गलत भावना रह गई है उसको भी हटाना है। ठीक है, सोसाइटी में भी बेहतर चेंजेस लाने हैं। उस समय जो है महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी जी जो थे, हमारे महात्मा गांधी जी जो थे, उन्होंने कहा कि ये जो जिनको आप अनटचेबल कहते हैं, कि जिन्हें आप छू नहीं सकते, ऐसे लोगों के लिए उन्होंने क्या नाम दिया, उसमें हरिजन नाम दिया। ठीक है, और उन्होंने लोगों को जागृत किया, लोगों को समझाया कि ये जो कास्ट के हिसाब से आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, इसको आप रिमूव करें। ठीक है, उसके लिए उन्होंने लोगों को बहुत समझाया। जब इंडिया
फ्री हो गया तब हमारे नेता लोग सोचने लगे कि ये जो हमारे सोसाइटी में सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, सोशल इनइक्वालिटी क्या है कि सबके साथ एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, सबको मौके नहीं मिल रहे आगे बढ़ने के लिए। और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी क्या है कि कोई बहुत रिच है, कोई बहुत ही पुअर है। तो ये सबको कैसे हटाया जाए सोसाइटी से, ठीक है, सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को कैसे हटाया जाए, इस बारे में हमारे जो नेता सब थे वो बहुत ही कंसर्न थे, ठीक है। इसलिए जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तो कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा क्लियरली ये लिख दिया गया कि अनटचेबिलिटी हैज़ बिन एबॉलिश्ड। ये जो छुआछूत की भावना है उसे पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाता है, वो और नहीं रहेगा हमारे देश में, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स लिखा गया। फंडामेंटल राइट्स में यह गारंटी दी गई कि जितने भी इंडिविजुअल कंट्री के हैं सबको फ्रीडम, सब फ्री हो गए हैं, किसी के रूल में नहीं रह सकते, सबको डिग्निटी मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, और सब लोग इक्वल है इन फ्रंट ऑफ लॉ, है ना। इंडिया के कानून के आगे सब लोग इक्वल है, सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होगा, इक्वल अवसर दिए जाएंगे, ठीक है, और उन सबको मान सम्मान दिया जाएगा, सब फ्री है। उसी कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा गया कि जो वीक लोग थे सोसाइटी का, जिनके साथ बाकी लोग ज़्यादा मैल ट्रीटमेंट कर रहे थे, बुरा व्यवहार करते, जैसे बच्चे हैं, वुमेन लोग हैं, चिल्ड्रेन, वुमेन, और जो माइनॉरिटीज़ है, मतलब ऐसा पॉपुलेशन जो कम नंबर में है, जैसे मुस्लिम्स थोड़े कम नंबर में थे, जैन्स थोड़े कम नंबर में थे, हाँ, या फिर ट्राइबल लोग जो थोड़े कम नंबर में थे, तो माइनॉरिटीज़ लोग के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, स्पेशल प्रोटेक्शन दिया। गवर्नमेंट ने ऐसे रूल बनाए कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये कहता था कि अगर इन लोगों के खिलाफ बैड बिहेवियर होगा तो बहुत ज़्यादा पनिशमेंट मिलेगा, और इन लोगों को आगे बढ़ने के लिए गवर्नमेंट ने चांस दिया, ठीक है। गवर्नमेंट कोशिश करती रही कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं उन्हें भी गवर्नमेंट नौकरी मिले, उन्हें गंदे काम नहीं करने पड़े, इसके लिए गवर्नमेंट हमेशा कोशिश करती रही। इसीलिए गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन नौकरियों में दिया है। जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनके लिए 15% रिजर्वेशन है, मतलब जितने भी सीट्स है उसके 15% सीट में शेड्यूल कास्ट वाले ही नौकरी कर सकेंगे, ठीक है। इसी तरह जितने भी सीट है उसमें से 7.5% सीट पे शेड्यूल ट्राइब वाले ही नौकरी कर सकेंगे, और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए उन्होंने 27% रिजर्वेशन दिया कि जितने भी सीट हैं उनमें से 27% लोग सीट जो है वो अदर बैकवर्ड क्लासेस ही उसमें नौकरी कर पाएंगे, उसमें दूसरे लोगों को नहीं दिया जाएगा नौकरी, ठीक है। तो इस तरह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रिएम्बल बनाया गया जिसमें इंडिया किन नीतियों को फॉलो करता है जो कि वो पूरे कंट्री के सारे लोगों के लिए है, उसको लिखा गया। तो जो लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उनका एम यही था, ये उनका गोल था कि सारे सिटीजन्स को इक्वल माना जाना चाहिए, ऑल सिटीजन्स मस्ट बी कंसिडर्ड इक्वल। जो प्रोमिनेंट मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ठीक है, उस समय जो ये बना, मतलब कि जो जैसे कि लोकसभा राज्यसभा होता है, तो उसमें जो बड़े बड़े मेंबर जो थे वो लोग कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, राजेंद्र प्रसाद थे, अब्दुल कलाम आज़ाद थे, वल्लभ भाई पटेल थे। This equality is seen as a key that unites all citizens of India. Everyone has been given equal rights and opportunities. People are free to follow and preach any religion they like. India is a secular country. The government does not show favor to or discrimination against any religion. Everyone is free to take up any profession or occupation. No discrimination is made on the grounds of caste, color, creed, gender, place of birth and religion in matters of access to public places and facilities. All citizens enjoy the right to freedom of speech and expression. The citizens can assemble or gather peacefully at any place. They are also free to form associations or unions. All Indians are free to reside and settle in any part of India. A person who thinks that his fundamental rights have been denied can move the Supreme Court or any High Court to restore these rights. Fundamental rights are right to equality, right to freedom of speech and expression, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, right to constitutional remedies. In spite of all these provisions in our constitution, inequalities exist in our society at various levels. It is our collective responsibility to strive for removal of discrimination and inequality from our midst. ठीक है, तो जो है ये जो इक्वालिटी आती सोसाइटी में, सब लोगों के साथ इक्वल बिहेवियर किया जाए, सबको इक्वल मौके मिले, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो है इंडिया के सिटीजन्स को एकता में बांधे रखता, उनको यूनाइटेड बना के रखता। क्या कि सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट हो, ठीक है।
हर किसी को इंडिया में इक्वल राइट्स दिए गए हैं, यहाँ सेम अधिकार सबको दिए गए हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ भी दी गई है, सबको जो है सेम अवसर या मौके मिल रहे हैं कि वह आगे बढ़ सके। ठीक है, लोगों को बोला गया है कि आप जो भी धर्म अपनाना चाहें और प्रीच करना चाहें, मतलब उस धर्म के बारे में आप लोगों के बीच में फैलाना चाहें, लोगों को बताना चाहें कि ये धर्म की क्या अच्छी बातें हैं, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। हाँ, इंडिया सेक्युलर का मतलब क्या है कि यहाँ पे सारे धर्मों को रिस्पेक्ट किया जाता है, टॉलरेट किया जाता है और हर कोई अपने धर्म को आगे बढ़ा सकता है, उसके बारे में प्रीच कर सकता है, हाँ, उसके बारे में बातें लोगों को बता सकता है। ठीक है, हर कोई फ्री है, हर कोई को यह फ्रीडम दिया गया है कि वो कोई भी नौकरी करे, कोई भी प्रोफेशन वो अपनाए। ठीक है, जिस भी करियर में वो जाना चाहे, चाहे डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, टीचर, जो बनना चाहे वो बन सकता है। ठीक है, कास्ट के ऊपर कि कलर के ऊपर कोई गोरे हैं कि ब्लैक हैं, जेंडर के ऊपर मैन है कि वुमेन है, प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ पे वो जन्म लिए, गांव में, शहर में, रिमोट एरिया में, या उनका कौन सा रिलीजन है, हाँ, इन सब के ऊपर कोई भी अन्याय नहीं होना चाहिए। किन मामलों में कि ये लोग किसी भी पब्लिक प्लेस में जहाँ जाना चाहे जा सकते हैं, इनको सारी फैसिलिटीज़ भी मिलेगी, उसमें कोई अन्याय नहीं किया जा सकता है। मान लीजिए जो है कोर्ट रूम है, तो कोर्ट रूम में ये नहीं आप बोल सकते कि नहीं सिर्फ हिंदूज़ ही एंट्री करेंगे, मुस्लिम्स एंट्री नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। वो एक पब्लिक प्लेस है, या गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो है वो पब्लिक प्लेस है, यहाँ पे सारे कास्ट के लोग, सारे जेंडर के लोग, सारे कलर के लोग, सारे रिलीजन के लोग जाना कर सकते हैं। ठीक है, सारे सिटीजन्स को यह भी राइट दी गई है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आप अपनी बात दूसरे लोगों को बता सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो आपको फ्रीडम दी गई है। ये नहीं कि आपको ओपिनियन बताने पे आपको रोक टोक की जाएगी, ऐसा नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सबको दिया गया है। सिटीजन्स जो है, देश के नागरिक, वो किसी एक जगह पे जमा होकर जो है एक जगह पे जमा होकर कुछ अपना मीटिंग कर सकते हैं, पर वो पीसफुली करना चाहिए, उसमें कुछ हिंसा नहीं होनी चाहिए, वायलेंस नहीं होना चाहिए। चुपचाप एक जगह पे मीट करके कुछ भी मीटिंग कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही यह भी फ्रीडम दिया गया है कि वो अपना एसोसिएशन और यूनियन बना सके। जैसे कि फैक्ट्री में जो है लेबर लोग जो है वो अपना एक यूनियन बना सकते हैं, लेबर यूनियन, ताकि वो अपने राइट्स के लिए बोल सके। ठीक है, सारे इंडियंस को यह भी मौका दिया गया है, यह फ्रीडम दिया गया है कि आप पूरे इंडिया में जहाँ चाहें आप वहाँ रहें और वहीं पे आप सेटल भी हो सकते हैं, अपना घर वर भी बना सकते हैं। ठीक है, इंडिया के किसी भी पार्ट में यह फ्रीडम भी दिया गया है। कोई एक पर्सन जिसको लगता है कि नहीं उसके फंडामेंटल राइट को डिनाई किया जा रहा है, दूसरे लोग उसे उसका फंडामेंटल राइट को फॉलो नहीं करने दे रहे हैं, वो आदमी जाके सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकता है और वो बोल सकता है कि नहीं, मुझे मेरा फंडामेंटल राइट दिया जाए वापस। ठीक है, फंडामेंटल राइट क्या है? 6 यहाँ पे दिए। राइट टू इक्वालिटी, मतलब एक समान व्यवहार सबके साथ होना चाहिए। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो हर कोई फ्री है कि वह अपनी भावनाएं दूसरों के सामने रख सके और बोल सके, अपने विचार व्यक्त कर सके। ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, किसी के साथ भी शोषण अगर हो रहा है तो उसे राइट है, उसे अधिकार है कि वो कोर्ट में जाके बोले कि मेरे खिलाफ शोषण हो रहा है। मान लीजिए कोई वुमेन और मैन है, दोनों ही एक जॉब में काम कर रहे हैं, वुमेन को सेम काम के लिए उसको कम पैसे दिए जा रहे हैं, और जबकि उनका एक्सपीरियंस भी सेम है, सेम काम भी कर रहे हैं, एजुकेशनल डिग्री भी सेम है, तो वुमेन जाके कोर्ट में ये कंप्लेन कर सकती है कि मेरे खिलाफ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, शोषण हो रहा है मेरा, जब मुझे सेम सैलरी नहीं दी जा रही है। ठीक है, इसी तरह कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स भी है कि जो लोग चाहे अपने कल्चर को आगे बढ़ा सकते हैं, हाँ, अपने कल्चर के बारे में लोगों को बता सकते हैं, कल्चर को आप अपने संस्कृति को आगे बढ़ा सकते हैं। और एजुकेशनल राइट है, हर एक बच्चा पढ़ाई कर सकता है स्कूल में। ऐसा नहीं है कि स्कूल रोक देगा, तुम इस स्कूल में एंटर नहीं करोगे। हर एक बच्चे को एजुकेशनल राइट है कि वो पढ़ाई कर सके। ठीक है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी है, कोई भी धर्म अपना सकता है और उसे मान सकता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से जो फैसिलिटीज़ दी गई हैं
कुछ लोगों को उनका अधिकार है कि वो फैसिलिटी उठा सके, जैसे कि अगर उन्हें रिजर्वेशन दिया गया है वो उस रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा सके। ठीक है, तो इतना सारा प्रोविज़न है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इतनी सारी फैसिलिटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है, पर आज के समय में भी हमारे सोसाइटी में इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करता है, असमानता एग्जिस्ट करता है, अभी भेदभाव अभी भी होता है अलग अलग लेवल पे। ठीक है, तो ये हमारा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हम सब लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सब एकजुट हो जाए और ये जो भी अन्याय हो रहा है या असमानता हो रही है हमारे समाज में, उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएं, उसको हम ख़त्म करने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। इजी चैप्टर था, इतना हार्ड चैप्टर कुछ नहीं था, और बहुत अच्छे से बी.आर. अम्बेडकर जी के स्टोरी को बताया गया है। चैप्टर का नाम डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन था। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोग को मेरा समझाया और बहुत अच्छा लग रहा होगा, वीडियो भी पसंद आ रहा है। तो आप लोग जो है जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को शेयर करें, और लाइक बटन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलें। ठीक है, जल्दी हमारे नए वीडियो आएंगे, आप उनका फ़ायदा उठा सकेंगे। थैंक यू।